So are you ready? क्या आप तैयार हो? Every moment you can live a life without fear. और हर क्षण आप ऐसे जीवन को जी सकते हैं बिना डर के। Yeah. Okay, let's go ahead. हम आगे बढ़े। Yeah. Psalm 27 वचन संहिता उसका 27 अध्याय and verse 3 first. और वचन 3 में हम पहले जाए। Yeah. Okay. What is David saying over here? यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? When challenges come, जब चुनौतियां आती है, I will remain confident. अब मैं पूरी तरह आत्मविश्वास में रहूंगा। How did David become confident? और दाऊद इतना आत्मविश्वास कैसे बना? 3 things I told you. मैंने 3 बातें आपसे कही थी। What did David say? दाऊद क्या कहता है? God is my light. परमेश्वर मेरा प्रकाश है, God is my salvation. और परमेश्वर मेरा उद्धारक है, And God is my strength. और परमेश्वर मेरी ताकत है। Now I want to take you to another level. और मैं आपको अभी अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। Yeah. We have been talking about confidence. हम आत्मविश्वास के बारे में बातें कर रहे हैं। Now I want to talk to you about commitment. और अभी मैं आपको समर्पण के बारे में बातें करना चाहता हूँ। Okay, tell me what is marriage? One side of marriage, I know it's a relationship. और मुझे आप बताएं शादी के बारे में, एक जो भाग है मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो रिश्ते के बारे में। Yeah, but in that relationship, परंतु उस रिश्ते में when you take vows, और जब आप कोई वादा करते या शपथ लेते हो, what are you doing? आप क्या करते हो? You are committing yourself. अपने आप को आप समर्पित करते हो। Can I hear an amen? So, in the same way, और उसी प्रकार से as God has committed himself, और जैसे परमेश्वर ने अपने आप को समर्पित किया and he has shown it और उसने इस बात को बता दिया by dying for us on the cross, और क्रूस पर मरने के द्वारा giving us beautiful promises, अब बहुत सारे ऐसे सुंदर से वादे हमें दिए and which are yes and amen. जो हाँ और आमीन है। Now, और अब you should commit to him. और अभी आपको अपने आप को समर्पित करना है। See, handling fear in your life has to do with not just confidence in God, but it's time to make commitments to God. और ये अभी समय है कि हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने का। Okay, let's go to verse 4. वचन 4 में हम जाए। Yeah. Now, David made 3 commitments. और हम देखते दाऊद ने यहाँ पर 3 ऐसे समर्पण किया। Yeah, very important. बहुत ही महत्व की बात। 3 commitments to God. और उसने 3 ऐसे समर्पण किया परमेश्वर के लिए। And I want to challenge you. अब मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। You try this in your life. और आप इस बात को आपके जीवन में कोशिश करिए। And I want to guarantee you, और इस बात को मैं आपको गारंटी देना चाहता by हूँ। the end of this year, और इस साल के अंत तक you will not only be a fearless man, और आप सिर्फ बिना डर के व्यक्ति ऐसे नहीं रहोगे, but लेकिन you will see beautiful promises of God being fulfilled in your life. और आप आपके जीवन में परमेश्वर की सुंदरता के ऐसे वादे आपके जीवन में पूर्ण होते हुए आप देखोगे। Yeah. Are you ready for those commitments? क्या उस समर्पण के लिए आप तैयार हो? Yeah. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Are you all with me? Okay. Commitment number 1 to the Lord. और समर्पण पहला नंबर ए जो परमेश्वर के लिए। What does David say? दाऊद क्या कहता है? This is my desire. ये मेरी इच्छा है या Yeah. चाहत है, This is what I will seek after. और इस बात को मैं खोजते रहूंगा। What is it? और वो क्या है? That I would live in the house of the Lord all the days of my life. और मेरे पूरे जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा। Who is this man? और ये व्यक्ति कौन है? King. राजा है। Who is this man? और ये व्यक्ति कौन है? Millions of people are under him. अब बहुत सारे से करोड़ों लोग उसके अधीन में हैं। But what is his commitment? परंतु उसका समर्पण क्या है? Lord, प्रभु, I want to live in your house. मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। What is your commitment to God? और आपका समर्पण परमेश्वर के प्रति क्या है? This year, you should have fresh, new commitments to God. और इस साल आपके बहुत ही नई और ताजी परमेश्वर के प्रति एक समर्पण होना है।
So I'll give you only one word in English. मैं आपको अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द दूंगा, Linger. बने रहना. Linger in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। Yeah. We take bits and pieces of David's life. हम दाऊद की जीवन में से थोड़ी थोड़ी बातों को यहाँ वहां से लेते हैं। Blessing. आशीष, Maybe sometime when how he handles problem. और कुछ हो सकता है जिसने समस्या को कैसे उसने उसको उसके हाथ में काम किया, How he cries out to God. और वो परमेश्वर को कैसे पुकारता How है, God delivers him. अब परमेश्वर कैसे उसको छुड़ाता है। But I want to ask you. परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Look at his commitment. उसके समर्पण को आप देखिए, Look at the desires of his heart. और उसकी हृदय की चाहत को आप देखिए। Let these desires become your desire. अब होने दी ये जो चाहत है वो आपकी चाहत बने। What was his desire? और उसकी चाहत क्या थी? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. अब मैं परमेश्वर के भवन में, उसके घर में मेरे जीवन भर में वहां पर रहूं। Who is in the house of God? परमेश्वर के घर में कौन है? God is there. परमेश्वर वहां पर है। So what is he desiring? और वो क्या चाहत रखता है? Just linger in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर बने रहने का। Yeah. What should your commitment be this year? और इस साल आपका समर्पण क्या होना है? Lord, प्रभु, I want to linger in your presence. मैं तेरे उपस्थिति में बने रहना चाहता हूँ। We come running to God for blessing. हम परमेश्वर के पास दौड़ते हुए आते हैं आशीष के लिए, And afterwards, और उसके बाद we run out into the world. और हम फिर से संसार में भाग जाते हैं। But this year, परंतु इस साल by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा we are going to linger in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। Moses had an assistant. और हम तो मूसा का एक सहायक था, What was his name? उसका नाम क्या था? Joshua. यहोशुआ। What was his testimony? उसकी गवाही क्या थी? Moses and Joshua would go to the tent of meeting, हम तो मूसा और यहोशुआ हम देखते उस तंबू के स्थान पे जाते थे where God's presence was there. जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। The moment Moses goes to the tent, और जिस क्षण हम देखते मूसा उस तंबू में जाता था, a cloud would appear and it would come down. तो हम देखते वहां पर बादल आता था और उसके ऊपर छाया रहता था। And from the cloud, God will speak to Moses. और उस बादल से परमेश्वर मूसा से बातें करता था। This was Moses' everyday practice. और ये हम देखते मूसा का ये प्रतिदिन का कार्य था। But लेकिन after Moses left the tent, और जब मूसा ने हम देखते तंबू को छोड़ दिया, one man एक व्यक्ति still used to be there. वहां पर रहता था। His name is Joshua. उसका नाम था यहोशुआ। What will God say about you? और परमेश्वर आपके बारे में क्या कहेगा? What is your testimony in the mouth of God? परमेश्वर के मुंह में आपके बारे में क्या गवाही है? Is it that you had a big job? क्या ये ऐसा है कि आपकी बहुत ही बड़ी नौकरी थी? Is it that you had 4 cars? या ऐसा है कि आपके पास 4 गाड़ियां थी? Or is it that God says, man, he really lingered in my presence. He never left me and went away. और कैसे इस प्रकार से कि परमेश्वर कहना है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे उपस्थिति में हमेशा बना रहता है और ये कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाता। Yeah. I really want to challenge you. और मैं सचमुच आपको चुनौती देना चाहता May हूँ। you love to linger in the presence of God. तुमने उसके उपस्थिति में रहने के लिए तुम्हारे अंदर एक तड़प होना है, एक तरस होना है. I want to linger in the presence of God. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहता हूँ। Yeah. See some of the young boys. और कुछ जवान लोगों को आप देखिए, Why they don't leave a girl's presence? वो लड़की की जो उपस्थिति को क्यों नहीं छोड़ते हैं? Because they love her. क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। I want to ask you, do you really love the Lord? मैं आपसे पूछना था कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो? Do you love his hand or his heart? क्या उसके हाथ से प्रेम करते हो या उसके हृदय से प्रेम करते हो? If you love his hand, you will run away. अगर आप उसके हाथ से प्रेम करोगे तो आप वहां से भाग जाओगे। But if you love his heart, यदि आप उसके हृदय से प्रेम करोगे, you will stay. वहां पर आप रहोगे, You'll not run. आप वहां से भागोगे नहीं। Even if he doesn't give you a blessing, you say, no problem. यदि वो आपको आशीष भी नहीं देगा, आप कहोगे कोई समस्या नहीं, No problem. कोई समस्या नहीं। Can I hear an amen? So, lingering in the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। What is so beautiful about his presence? और उसकी उपस्थिति के बारे में ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो बहुत ही सुंदर है? Bible says, वो शास्त्र कहती है, your dwelling place is lovely. You go to a garden. और आप बगीचे में जाइए,
What do you feel? आपको कैसा महसूस होता है? Good garden. बहुत ही अच्छा बगीचा। What do you say? Come on, tell me. और Tell आप me. क्या What? कहते हो? Huh? Huh? What? Huh? Nice. Nah, come on, you enter a garden और आप बगीचे में आप प्रवेश करते हो and all your senses are flying, you know. और आपके जितने भी महसूस करने वाली बातें वो सब उड़ती है। Now, what do you say? तो आप क्या कहते हो? Wow. In the same way, उसी प्रकार से presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। Wow. वाह! What is David saying? दाऊद क्या कहता है? Your dwelling place is lovely, Lord. और प्रभु तेरा निवास स्थान बहुत ही प्यारा है। Yeah. Lovely. Beauty is in the dwelling place of God. और बहुत ही प्यारा और सुंदरता की जो बात है हम देखते हैं उस निवास स्थान में है। And he says, I want that. और वो कहता है कि मैं वो चाहता हूँ। Yeah. You go to this fellow's house, that fellow's house, ये लड़की के घर, वो लड़की के घर, उधर जाके तुम्हें क्या मिलता है? कोई lovely नहीं, पता नहीं क्या मिलता है। You just go to one family and sit down there for 2 minutes. और एक परिवार में आप जाइए, सिर्फ 2 मिनट वहां पर बैठिए। Sometimes you feel, come on, get up, go. कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से उठ के चले जा। Why? क्यों? Because the atmosphere is filled with different evil things. क्योंकि वहाँ का जो वातावरण हम देखते हैं वो अलग-अलग प्रकार से दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं। But here, परंतु यहाँ पर the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the dwelling place of God, परमेश्वर का निवास स्थान, there वहाँ पर is only loveliness. हम देखते हैं सिर्फ प्यारी बातें होती है। Think about the atmosphere. उस वातावरण के बारे में आप सोचिए। Okay, you go to a hospital. What kind of atmosphere is there? और आप कोई हॉस्पिटल में आप जाए तो वहाँ का कैसा वातावरण होता है? Tell me, what kind of atmosphere is there? Huh? Silence. छोड़ रहे, silence everybody. Even in school, silence is there. Don't talk about silence. Huh? Sad. Yeah, sorrow. Number one is sorrow. और पहला हम देखते हैं वो शोक या दुख होता है। Nobody is smiling. कोई भी मुस्कुराता नहीं है वहाँ पर। Even the biggest joker in life and world over there. Okay, second, what is happening? दूसरा वहाँ पर क्या होता है? Burial, correct. People are getting ready to be buried. और लोग वहाँ पर तैयार होते हैं वहाँ पर गाड़ने के लिए। You go to a cemetery. आप कब्रिस्तान में जाइए। What is the atmosphere over there? तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है? Death, मृत्यु, sadness, दुख, शोक। grief. Does it affect you? क्या वो आप पर प्रभाव लाता है? Tell me, talk to me. Does it affect your soul? Come on, क्या वो come on, आपके come on. प्राण पे प्रभाव Come on, लाता does है it क्या? affect your soul? क्या वो आपके प्राण पर प्रभाव लाता है? How much the presence of God, if you visit that place and you stay there, how much it will affect your soul? और तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब जाओगे तो कितना आपके प्राण पे प्रभाव लाएगा फिर? Think about it. इसके बारे में सोचिए। Why you want to struggle? तो आप संघर्ष क्यों करना चाहते हो? Why? क्यों? Just learn and love the presence of God, because that's where loveliness of God is there. और उसकी बात को सीख के उससे प्रेम करें क्योंकि वहां पर परमेश्वर की प्रेम की बातें हैं। Go to verse 2. वचन 2 में जाइए। What does he say? वो क्या कहता है? He's talking about, how desperate he wants to be there. और वो यहाँ पर बताता है कि कितना व्याकुल है उस Yeah. बात में जाने के लिए। This should be a longing. ये आपकी एक चाहत होनी है। Yeah. Okay. All right. So where should you linger? और आपको कहाँ पर बने रहना है? Presence of God. Okay. परमेश्वर की उपस्थिति में। Now what is verse 3? What does he say? Now, वचन 3 में वो क्या कहता है? in the tabernacle of Moses, मूसा के निवास स्थान पर David saw something. दाऊद ने कुछ बातों को देखा। He saw even the birds. उसने ये भी देखा कि पक्षियों को, Even the birds, वहां पर उसने देखा पक्षियों भी, they are enjoying the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति का वो भी आनंद ले रहे हैं। And actually David is getting jealous about them. और हम देखते जो दाऊद हम देखते उन पक्षियों को देखकर ईर्ष्या करता है। But I want to tell you something. परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। He says, वो कहता है, he talks about the birds and all. वो यहाँ पर पक्षियों के बारे में बातें कर रहा है। Let's go to verse 4 and then I will talk a bit about the birds, okay? और वचन 4 में जाएंगे, उसके बाद हम पक्षियों के बारे में बातें Come on, करेंगे। let's read. What? No, what sorrow? Sorrow. शोक, Sorrow. I want to ask you, why are you sad? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दुखित क्यों हो? Because you are not lingering in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप बने नहीं हो।
If you have 5 people in the family अगर आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं and all of them love to linger in the presence of God, और ये सभी लोग परमेश्वर के उपस्थिति में प्रेम के उसके बने रहने के लिए प्रेम करते हैं, you think about what an atmosphere you will have in your home. तो इस बारे में आप सोचिए कि आपका घर का वातावरण कैसे होगा। It will be full of joy. वो पूरी तरह आनंद से भरा हुआ होगा। What can you give? तो आप क्या दे सकते हो? Only what you receive. और जो कुछ आप पाते हो वही दे सकते हो। हम पूरा संसार में घूम के आते हैं. We go everywhere, हम सब जगह पे जाते हैं, but लेकिन except the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर Everywhere we'll go. हम सब जगह पे जाते हैं। I have to go to work. मुझे काम पर जाना है, I have to go for shopping. अब मुझे खरीदारी करना है, I have to go to my friend's house. मेरे दोस्त के घर पे मुझे जाना है। Everywhere. हर जगह पर I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता I हूँ, want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, In your list of priority in relationship, who is number 1? तो पहला नंबर कौन है? If it is Jesus, यदि अगर वो यीशु है, you should love to linger in his तो presence. आपको उस बात को प्रेम करना है कि उसके उपस्थिति में बने रहने के लिए। Enemy has stolen. और दुश्मन ने चुराया है, You get it back. उसे आप फिर से ले लो। Why you don't have joy? और आपके आनंद क्यों नहीं है? Because you are not lingering in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहते नहीं हो। What joy for those who can live in your house. Always mourning, always crying, always mourning. Where is that song which should be in your mouth? और वो गीत कहाँ पर है जो आपके मुंह में होना चाहिए था? Where is that song? वो गीत कहाँ पर है? When you come and linger in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं और वहां पर आप रहते हो, that presence, और वो उपस्थिति what will it do? वो आपको क्या करेगी? Fill you with joy. वो आपको आनंद से भरेगी। There is joy in the presence of the Lord. अब परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर आनंद है। Why are you sad? और आप क्यों दुखित हो? Because you are not lingering in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बने रहते हो। Make a commitment this year. और इस साल आप एक समर्पण कीजिए, I'm going to linger in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहूंगा। And good news, और अच्छी खबर यह है, God will not throw you out. परमेश्वर आपको वहां से बाहर नहीं फेंकेगा। He will give you full attention. वो पूरी तरह आपके ऊपर ध्यान लगाएगा। So what will be there? तो वहां पर क्या होगा? Joy. आनंद होगा। Yeah. Now, the sad thing about the birds is और हम देखते हैं जो पक्षियों की जो बारे में जो दुख की बात ये है, they are enjoying the provision. और हम देखते हैं जो प्रबंध की बातों का वो आनंद लेते हैं, They are enjoying, उसका आनंद लेते हैं, but लेकिन they cannot relate to God. वो परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं बना सकते हैं। Who is God looking for? परमेश्वर किसको देखता है? Not birds. पक्षियों को नहीं, He's looking for you. वो आपको देखता है। When will you come? कब आप उसके पास आओगे? When will you linger in his presence? कब आप उसके उपस्थिति में आप रहोगे? Go to verse 10. वचन 10 में जाइए। A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. Amen. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. What should be your desire? तो आपकी चाहत क्या होनी है? Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। I want to be there where God is present. जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है वहां पर मैं रहना चाहता हूँ। Look at the king. What is he saying? यहाँ पर देखिए राजा क्या कहता है, One day in your court और एक दिन तेरे भवन में, is better than 1,000 anywhere else. और 1000 दिन जहाँ पर और कहीं पर उससे भी बढ़कर, It's better to be a gatekeeper in your house और तेरे घर के चौकीदार बनने से बहुत ही अच्छी बात है, than to live in a man's house who's wealthy but wicked. परंतु ऐसे व्यक्ति के पास रहना जो बहुत ही धनी है परंतु दुष्ट है। I want to ask you, how many hours you spend with some people who are, don't mind my language, who are foolish.
और मेरे भाषा को आप इसको गलत ना सोचे, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में कितना ज्यादा समय बिताते हो जो मूर्ख है। But लेकिन with the Lord, परंतु प्रभु के साथ your time with the Lord और आपका समय प्रभु के साथ is so fast. वो इतना तेज होता है। Yeah. Okay. Bible reading one chapter is gada 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 gada. Gada 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 gada. Gada 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 gada. You may start like that, आप ऐसी शुरुआत तो कर सकते हो, but don't end like that. परंतु ऐसे समाप्त ना करें। You know, when you finish praying, you should feel, no, I should wait for some more time. जब आप प्रार्थना समाप्त करते हो तो उस समय आपको ऐसा महसूस होना है कि हाँ, मुझे और कुछ समय बिताना है, Because it is so tasty. क्योंकि वो इतना रुचि में भरा हुआ है। Yeah. You taste the Lord, and you come to know how good the Lord is. और आप परमेश्वर को आप चखिए और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना भला है। Taste and see, the Lord is good. आप परमेश्वर को चखो और देखो कितना वो भला है। Now, I want to touch one point now. और एक मुद्दे को मैं छूना चाहता Yeah. हूँ। So when we do some mistakes, जब हम कुछ गलतियां करते हैं, there are times we may not go in the presence of God. हो सकता है ऐसा समय होगा, उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं जाते I हैं। want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, no matter how big your mistake is, और होने दे आपकी कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, always remember, हर समय याद रखिए, run to the Lord. प्रभु के पास दौड़िए। Whatever mistake you have done, और जो भी आपने गलती की होगी, only God सिर्फ परमेश्वर ही with all his heart will embrace वो you. पूरे अपने हृदय के साथ में आपको गले लगाएगा। Nobody else has that capacity to embrace you with all their heart. और किसके पास ये काबिलियत या ताकत नहीं है कि वो आपको पूरे अपने हृदय से गले लगाए। I want to show you two examples quickly. मैं आपको दो उदाहरण यहाँ पर बताना चाहता हूँ। One is Cain. और ये है, हम देते हैं काइन, He killed his brother. और उसने अपने भाई को मार डाला। First murder. पहला जो हत्या। When God met him, और जब परमेश्वर उसे मिला, when God spoke to him about the murder. और जब परमेश्वर ने उस हत्या के बारे में उससे बातें की, See, after all that talking, और इस सब बातें बोलने के बाद, God trying to encourage him to walk with him. अब परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि उसे उत्साहित करे उसके साथ में चलने के लिए। But what did he do? परंतु उसने क्या किया? Genesis 4:16. ये उत्पत्ति का 4:16 Yeah. Okay, what did Cain choose? So Cain left the Lord's presence. Now I want you to learn something over here. हमें यहाँ पर चाहते कुछ बातों को आप सीखें। God did not leave Cain. परमेश्वर ने कैन को नहीं छोड़ा, Cain left the presence of God. परंतु कैन ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया। God is for you परमेश्वर आपके लिए है, through Jesus. यीशु के द्वारा। Come to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप आइए, Because it is in the presence you will find whatever you need. और जो भी आपकी जरूरत है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मिलेगी। Can I hear an amen? So let not sin make you run away from God. और होने दे पाप आपको परमेश्वर से दूर ना ले जाए, But लेकिन you come to him with that. और उसके साथ आप प्रभु के पास आइए, Come with that. उसके साथ आइए। Only he can be your solution. वही आपके लिए वो एक ही है जो उपाय हो सकता है। No, but he will reject me. नहीं, वो मुझे नकारेगा, He will not reject you. वो आपको नहीं नकारेगा, He will not reject you. वो आपको नहीं नकारेगा, Because he was rejected on the cross of Calvary for क्योंकि you. कलवरी क्रूस पर वो आपके लिए नकारा गया। Can I hear an amen there? But there is another man called David. वहां पर और एक व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद। What happened with him? उसके साथ में क्या हुआ? Yeah, this man made a big mistake. और इस व्यक्ति ने बहुत ही बड़ी गलती की। He committed adultery. दाऊद ने व्यभिचार किया, Consequences were very bad. और उसका जो परिणाम जो था बहुत ही बुरा था। Did God continue to love David? क्या परमेश्वर ने दाऊद से लगातार प्रेम किया? Yes. हाँ। But I am not telling you to dabble with sin. अब मैंने कहता कि आप उस पाप के साथ में खेले, But I am talking to you about the heart of God. मैं परमेश्वर के हृदय के बारे में मैं आपसे बता रहा So हूँ। I'm not giving anybody any license over here to live a substandard life. और मैं यहाँ पर किसी को भी इस प्रकार से अनुमति नहीं देता कि इस प्रकार से जीवन को जिए, Lower living, और बहुत ही निचला जीवन, dabbling with sin. पाप के साथ में खेलते रहना। No. नहीं, What I am saying, if you are caught in it,
run to the presence of God. और मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप पाप में अगर जकड़े हो तो आप परमेश्वर के पास दौड़ते हुए So जाइए। what happened to David? तो दाऊद के साथ में क्या हुआ? He committed adultery. उसने व्यभिचार किया He killed the husband of this woman called Bathsheba. और बेतसिबा जो हम कहते हैं जिस स्त्री का पति को उसने मार डाला। After one sin, he committed another sin. उसने एक पाप के बाद उसने दूसरा पाप किया Then this woman became pregnant और उसके बाद ये जो स्त्री है वो गर्भवती हुई and she had a child whom she was going to deliver. और उसके बाद वो पेट में बच्चा था जिसको वो जन्म देने वाली थी। By that time, God spoke through a prophet called Nathan. और उस समय परमेश्वर ने नातान के द्वारा जो भविष्यवक्ता उसके द्वारा उससे बातें की। When you sin, जब आप पाप करते हो sometimes you become blind. कभी कभी आप अंधे हो जाते You हो, can't see anything. आप कुछ भी नहीं देख पाते हो That's why you need men to come and talk to you. और इसीलिए आपको परमेश्वर के लोगों की जरूरत पड़ती है कि वो आपसे आए और बातें करें। And I thank God for people like Nathan. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ नेतन के समान के लोगों के लिए, The way he spoke to the king. जिस प्रकार से उसने उस राजा से बातें की। You can't talk to king that time. और उस समय आप उस समय राजा से ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। तेरा सर उड़ा देंगे वो लोग. But I thank God for Nathan. परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ नेतन के लिए। He went and in the wisdom of God, he brought forth that correction. और वो परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा उसने उस सुधार को राजा के जीवन में लाया And David took it. और दाऊद ने उस बात को ले लिया Now the child is ready to come out. और अभी वो बच्चा तैयार है बाहर आने के लिए Child comes out. और बच्चा बाहर आता है। Yeah. But the Bible says, परंतु पवित्र शास्त्र कहती है God struck him. That means he became sick. और वो बीमार हो गया Because God said, this will not happen. अब परमेश्वर ने कहा कि ये बातें नहीं होगी। I told you there are consequences. मैंने कहा कि इसका परिणाम होता है। So the child is sick now. और अभी वो बच्चा बीमार है। So you know what David did? आपको पता है दाऊद ने क्या किया? He did not get bitter with God. वो परमेश्वर के साथ में कड़वा नहीं हुआ। If I would have been there, अगर मैं वहां पर अगर रहता, you would have been there, अगर आप वहां पर रहते, what would have happened? क्या होता था? We would have become bitter आप कड़वे हो जाते थे, and run away from the presence of God. अब परमेश्वर की उपस्थिति से आप भाग जाते थे। But what did he do? परंतु उसने क्या किया? See, this is the beauty of a man. और हम देखते हैं, ये मनुष्य की सुंदरता की बात ये है This is the beauty. और ये सुंदरता है। And I really pray अब मैं सतत प्रार्थना करता हूँ your heart would run after God. आपका हृदय परमेश्वर के पीछे दौड़े। And God will say, अब परमेश्वर कहेगा whatever I say, जो कुछ मैं इसे कहता हूँ he will do it. वो करेगा। 2 Samuel chapter 12 verse 16. So now the child is sick. और हम देखते हैं यहाँ पर अभी बच्चा बीमार है। Does he know God has touched the child? क्या उसे पता है कि परमेश्वर ने उस बच्चे को छुआ है? Yes or no? Come on. हाँ या नहीं? Devil did not touch the child. और शैतान ने उसे छुआ नहीं है It's God who touched. और परमेश्वर ने जो उसने छुआ है। The Bible talks about this as judgment. अब पवित्र शास्त्र इस एक न्याय के बारे में बताती I है। want to tell you judgment is good. मैं बताना चाहता हूँ जो न्याय जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। Yeah. Okay. So what happened? तो क्या हुआ? What did David do? तो दाऊद ने क्या किया? Did he go back to the presence of God? क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया? Same man. What was his prayer in Psalms 27 अब वचन संहिता 27 अध्याय में उसकी क्या प्रार्थना थी? वही व्यक्ति and verse 4? वचन 4 में। One thing I ask you. और एक चीज मैं आपसे मांगता हूँ, This is what I desire. ये मेरी एक चाहत है This is what I seek. और यही बात को मैं खोजता हूँ That I will dwell in the house of the Lord my God. और मैं अपने परमेश्वर प्रभु के घर में मैं निवास स्थान बनाऊंगा। In that moment of great sorrow, और हम वो जो महान शोक के समय पर, in that moment of going through the consequence of his sin, और हम देखते जो पाप का परिणाम का हम जैसे क्षण में वो जाने के समय पर yeah, he did not become bitter. वो कड़वा नहीं हुआ। What did he do? उसने क्या किया? He went back to the presence of God. वो परमेश्वर के उपस्थिति में फिर से लौट आया। David begged God दाऊद ने परमेश्वर से विनती की to spare the child. उस बच्चे को बचा दे। Why did he beg him? और उसने विनती क्यों की? Even after God declaring judgment, अब परमेश्वर ने इस न्याय को घोषणा करने के बाद बाद भी David has the audacity to tell the Lord, please, what a man. क्यों हमने उसके उपस्थिति में रहना है ताकि हम उसे जान सके.
You live with a person, you know him in and out. अरे आप व्यक्ति के साथ में जब रहते हो तो आप उसको अंदर बाहर से जान जाते हो। You spend time lingering in the presence of God. God will reveal himself to you. और आप अपने समय को बिताओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहोगे, परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। He says, Lord, और वो कहता है प्रभु please. कृपया। He was actually asking for grace. वो वास्तविक में परमेश्वर से वो अनुग्रह को मांग रहा था। I don't deserve this. मैं इसके लायक नहीं हूँ प्रभु। I'll tell you, your prayer life depends upon whether you linger in the presence of God. और आपका प्रार्थना का जीवन उस बात पर निर्भर होता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो या नहीं हो। It's all upon that. ये सब बातें उस पर है। Otherwise, prayer is all broken. नहीं तो आपकी प्रार्थना हम देखते हैं, एक टूटी हुई ऐसी चीजें के समान है। See, when you know, after you know, there are a lot of things you don't do. और जब कुछ बातों को आप जानते हो तो ऐसी कुछ बातें जो आप नहीं करोगे फिर। You come here. You have a brother, na? Elder brother. Yeah? Yes. So after you meet him and all, does he ask you, do you want anything? He asked me if Yes. He being selfish, वो स्वार्थी होने के बाद भी वो तुझसे पूछता है, कुछ मांगता है क्या? वो कौन? वो कौन? वो तो वो कौन? ये ऐसा तो वो कौन? You know, some of your prayers you don't even need to pray. और आप जानते हैं कुछ ऐसे आपकी प्रार्थना है जिसे आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। He'll ask you. वो आपसे पूछेगा। So what happened? तो क्या हुआ? Yeah. So he did a lot of things. David, like a small boy. एक छोटे बच्चे के समान वो बहुत सारी बातों को बोलता है। Yeah. He was demanding grace. वो अनुग्रह को मांग कर रहा था। Then he started to fast. और उसके बाद उसने उपवास करना शुरू किया। No food, no water. कोई भी भोजन, कोई भी पानी नहीं। If king does not eat food, यदि अगर कोई राजा अगर खाना नहीं खाता है do you know in the palace, तो आपको पता है कि महल में nobody can eat. कोई भी खा नहीं सकता है। And the Bible says he was lying down on the floor. और पवित्र शास्त्र बताते हैं कि वो जमीन पर पूरी तरह लेटा हुआ था। So when he is lying down, और जब वो नीचे लेटा हुआ है, do you know what is the position with all the ministers and all? They are not lying down. They are all in the palace only standing. और सभी लोग वहां पर महल में सिर्फ खड़े रहते हैं, खड़े हैं। क्यों? King is lying down. क्योंकि राजा वहां पर लेटा हुआ है। No food. कोई भी भोजन नहीं। One side that child is full of fever. और एक साइड, एक बाजू में हम देखते हैं वो बच्चा पूरी तरह बुखार में है। Bathsheba must be crying. बेतशेबा हो सकते है उस समय रोती होगी। Did the child die? क्या वो बच्चा मर गया? Go to verse 20. वचन 20। Now look at the turn of event. परिस्थिति का मोड़ कैसा हो रहा देखो. Child has died. बच्चा मर गया। He comes to know. और इस बात को जान जाता है। So for 7-8 days, he has been there, lying down, no food, no water, asking the Lord to save this child. और 7-8 दिन से कोई भी भोजन नहीं, कोई भी पानी नहीं, और वहां पर लेटा हुआ, और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू उस बच्चे को तू बचा। Now child has died. और अभी वो बच्चा मर गया। So what did he do when he heard? जब उसने इस बात को सुना तो उसने क्या किया? Got up, वो उठ खड़ा हुआ straight to the bathroom. और सीधे बाथरूम में चला गया। He is not a man who is running with emotions. और वो ऐसा मनुष्य नहीं था जो भावनाओं के साथ में चलता था। He knew some things about God. वो परमेश्वर के कुछ बातों को जानता था। And I really pray अब मैं सच में प्रार्थना करता हूँ that you and I should know some things about God. और आपको और मुझे भी कुछ बातों को परमेश्वर के बारे में जानना है। What did he do? उसने क्या किया? Got up, वो उठ खड़ा हुआ, washed himself, उसने अपने आप को धो दिया put on perfume, और उसने उस इत्र को डाला, changed clothes, उसने कपड़े को बदल दिया and went straight
to the presence of God. और वो सीधे परमेश्वर के उपस्थिति में चला गया। Child has died. बच्चा मर गया। What did Cain do? और कैन ने क्या किया? Left the presence of God. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया। What did David do? दाऊद ने क्या किया? Came into the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। Whatever mistake you make, और जो भी आप गलती करे, I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, only in the presence of God there is refuge for you. और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको शरण स्थान है। Yeah, so he went to the tabernacle and worshiped the Lord. और वो निवास स्थान में गया, परमेश्वर की आराधना की उसने। And see what happens. और उसके बाद देखिए क्या हुआ। Comes back to the palace. और वो फिर से भवन में आता है। And what does he say? और वो क्या कहता है? Bring me food. वो कहता है मुझे भोजन लाओ। What does it tell me? ये बात मुझे क्या बताती है? David did not become bitter with God. और दाऊद परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ। Please judge God properly. तो उसके परमेश्वर का न्याय आप सही रूप से करिए। And people who linger in the presence of God will be able to judge God properly. और जो परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहते हैं, वही परमेश्वर को सीधे तरह से या पूरी तरह से उसका न्याय कर सकते हैं। Verse 21. वचन 21। Are you picking up something? Yeah. His advisors are amazed. और उसके जो सलाहकार बहुत ही अद्भुत हो गए। They say we don't understand you. और वो कहने लगे हम आपको नहीं समझ पा रहे। Why they didn't understand him? वो उसे क्यों नहीं समझ पा रहे? He was a man who was lingering in the presence of God. और वो ऐसा व्यक्ति जो था जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहता था। That was his lifestyle. ये उसका जीवन का तरीका था। You will never understand those people आप उन लोगों को कभी भी नहीं समझ पाओगे। because they will always do things which are opposite to the world. और हम तो हर समय जो संसार के विरुद्ध में वो कार्य करेंगे। And I really pray और मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ you will be different. आप बहुत ही अलग हो जाओगे। I really pray. और मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ। Yeah. So what did they say? तो उन्होंने क्या कहा? While the child was still living, जब वो बच्चा जी रहा था you wept and refused to eat. और तू रोया और तूने खाना को इनकार किया। But now, अभी परंतु child is dead. अब बच्चा मर गया। You have stopped your mourning तूने अपने शोक को रोक दिया and you are eating again. और अब फिर से तू खाना खा रहा है। Verse 22, वचन 22। David replied, दाऊद ने उत्तर दिया, I fasted and wept while the child was alive और मैंने उपवास किया और रोया जब तक बच्चा जीवित था, because I said, क्योंकि मैंने कहा perhaps the Lord will be gracious to me हो सकता है परमेश्वर मुझ पर वो अनुग्रह करे and let the child live. और वो बच्चा जीवित रहे। He saw something of God which he did not get that moment. और उसने परमेश्वर के कुछ बातों को देखा, उस समय उसे वो बातें नहीं मिली। Yeah. Verse 23, वचन 23। but why should I fast when he is dead? और अब वो मर गया तो मुझे अभी उपवास करने की क्या जरूरत है? Can I bring him back again? क्या मैं उसे फिर से ले आ सकता हूँ? No. नहीं। But लेकिन I will go to him one day. परंतु एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। Every dead child हर एक जो बच्चा जो मरता है is growing in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता है। You will one day see those children. और आप एक दिन उन बच्चों को आप देखोगे। Verse 24. वचन 24। Then David comforted Bathsheba. और तब दाऊद ने बेतशेबा को सांत्वना दी है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ only people who linger in the presence of God can comfort other people. और वही लोग दूसरे लोगों को सांत्वना दे सकते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। Yes, nobody else. और कोई भी नहीं। Because comfort is in the presence of God. क्योंकि हम देखते सांत्वना हम देखते परमेश्वर की उपस्थिति में ही होती है। Yes. So again she became pregnant. और फिर से वो गर्भवती हुई And they named him Solomon. और उस बच्चे का नाम उन्हें सुलेमान रखा। I love this. ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। The Lord loved the child. परमेश्वर ने उस बच्चे से प्रेम किया And God in fact gave a name to the child. और परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम दिया। His name was Zedidah, the beloved of God. परमेश्वर का प्रियजन। Yeah. Go to verse 25. वचन 25 देखिए। And God sent a word through Nathan the prophet that they should name him what? Jedidah, which means beloved of the Lord. Praise God. Wonderful story. बहुत ही अद्भुत कहानी, Good story. अच्छी It can कहानी। become your story. ये आपकी कहानी बन सकती है। But what do you learn? परंतु आपने क्या सीखा? He did not run away.
वो वहां से नहीं भागा, He came back to the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से लौट आया। You run into the presence of God, आप परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ के जाइए, God will turn around situations. अब परमेश्वर हर एक उन परिस्थिति को मोड़ देगा। God bless you all.